Welcome to our channel, the New Era Academy. Now we're going to study about the living and non-living things around us. So among these, some are natural things and some are man-made. So every man-made things is non-living, first of all. But in natural things, some are living and some are non-living. So let have a look around us. First of all, let have a look on the topic natural things. What are natural things like animals, people, birds, mountain, clouds, sun, moon, stars, flowers, plants, etc. These are the natural things we see around us. All these things are natural things. Among these natural things, some are living things, which are, for example, people, we human beings, animals, plants, fall in the category of living things. Stars, mountains, clouds, etc. we see, these are non-living things, but natural. Apart from these natural things, there are some others such as road, bridges, vehicle, buildings, computers, bat, table, mobile, electrical wire. These are man-made things, but these are non-living things. So characteristics of a living things. Let's have a look on the characteristics of living things. All living things have life, you know that, but they have a certain characteristics in living things which differentiate them from non-living things. जैसे कि कुछ characteristics होते हैं living things में जो non-living things से अलग है. जैसे कि living things grow करता है, living things को खाना चाहिए, living things को मतलब they need to breathe, they grow, they die. बट नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, उन लोगों को वो ना मरते हैं, वो लोग ना जिंदा होते हैं, उन लोगों को ना खाना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उन लोगों को. तो हम लोग देखते हैं क्या होते हैं लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स. हम अभी पढ़ेंगे. विल स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लिविंग थिंग्स. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग इज लिविंग थिंग्स मूव. सो लिविंग थिंग्स मूव. ऑल लिविंग थिंग्स मूव. They move in search of food and shelter, and also to protect themselves from their enemies. Most animals move on their legs. Birds use their wings to fly. Animals without legs or wings use their body to crawl or slither. Fishes swim in water. Humans also move on their legs. For example, all living things moves. We know that. Some they move in search of food. Like example, tiger. Tiger, they move from one place to another to hunt डियर, और कुछ खाने के लिए वो लोग चलते रहते हैं. इंसान को भी देखो, हम लोग को कुछ खाना अगर घर में नहीं रहता तो हम लोग मूव करते हैं, बाज़ार से लाते हैं, उसको भी एक तरह की मूव, मतलब वी मूव टू टेक फूड. शेल्टर, हम लोग रहने के लिए मूव करते हैं. हम लोग तो इंसान तो घर है, लेकिन घर है इसलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरे जो जीव जंतु होते हैं उन लोगों को तो एक जगह से एक जगह मतलब शिफ्ट होना पड़ता है. तो शिफ्ट तो होने नहीं, मतलब दे मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. ओके. And also protect themselves from the animals. For example, deer. If they see a tiger, they run away. They run from one place they run to hide themselves because tiger are going to hunt them. So this is a natural process. They will hunt. They will also hunt someone. So these are the example that how living things move. Most animals move on their legs. Most animals, ज़्यादातर animals क्या होते हैं, अपने पैर पे चलते हैं. लेग, जैसे कि हम लोगों को देख लो, इंसान, डियर, टाइगर, लायन, काव, जो भी होता है उन लोगों को पेड़ से चलते हैं. लेकिन जिन लोगों का पैर है लेकिन पेड़ से जा नहीं सकते, जैसे कि बर्ड्स, दे कांट मूव वेरी फास्ट, ओके, विथ लेग्स. दे यूज देयर विंग्स टू मूव. और एनिमल जो एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि उसी लीचेस, लीचेस, दे डोंट हैव विंग्स और लेग्स. Or see the snakes, they don't have legs, they don't have wings. सांप का कोई लेग, पैर भी नहीं है और विंग्स भी नहीं है. तो क्या करते हैं वो लोग, अपना बॉडी को यूज़ करते हैं क्रॉल करने के लिए, ऐसे जाने के लिए, मूव करने के लिए अपना बॉडी को यूज़ करते हैं. फिशेस का ना पैर है ना विंग्स है. वो क्या करते हैं, उन लोगों को वो लोग स्विम करते हैं पानी में. उन लोगों को क्या यूज़ करते हैं, उन लोगों को जो साइड में होता है ना, क्या होता है, क्या बोलते हैं, fish use their fin to move in the water, or they use their body also. Human also move on their legs. So अब आते हैं प्लेंट्स के बारे में. प्लेंट्स भी तो क्या होते हैं, उन लोगों भी लाइफ है. दे आर लिविंग थिंग्स, बट
They don't move like animals and humans. But the leaves and flowers show some movement. The leaves of the touch me not plant fold themselves up when touched. The sunflower turns its face towards the sun. For example, you seen a mimosa plant? Actually, this is called touch me not plant. If you touch the plant, it shrinks. और जो फ्लावर सनफ्लावर होते हैं उन लोग को जिस तरफ भी सन होता है उन लोग सन की तरह ही मतलब दे फेस देयर फेस टुवर्ड्स द सन. So this is the type of movement shown by the plant. Now another characteristic of living thing is living things grow and die. All living things grow with time. They are small at the birth but grow bigger with time. A baby grows into a man or a woman. A small plant grows into a big plant. A puppy grows into a dog. Living things keeps on growing and changing all the time. All living things die one day. So this is a natural thing that we will die one day, and everyone will die if the things is living things. So for example, हम देखते हैं कि हम जब छोटे तो देखते हैं अपना भाई भी होगा, बहन भी होगा, छोटा छोटा है, अभी कुछ दिन बाद बड़ा हो जाएंगे. तो क्या होता है, वो लोग ग्रो करते हैं. इसका मतलब क्या है, वो लोग लिविंग थिंग क्या करता है, ग्रो होते हैं. प्लांट्स क्या होता है, पहले छोटा होता है, फिर ज़्यादा बड़ा होता है, बाद में बड़ा होते हैं. तो क्या उसको क्या होता है, उन लोग ग्रो करते हैं और अंत में वो लोग सब मर जाते हैं. सो लिविंग थिंग्स grow and die. This is another characteristic. So the third characteristic of living things is living things need food and water for their survival. So all living things need food and water for survival. For example, plants also need, you human also need everything. Without food and water, they would die. So food provides energy and helps them to grow and become strong. फूड जो होता है हर जीव को, हर एनिमल या हर इंसान को क्या करते हैं, एनर्जी देता है और उन लोगों को ग्रो करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट फूड विद देयर माउथ. वो लोग अपना खाने कैसे खाते हैं, मुंह से खाते हैं. लेकिन एनिमल कैसे खाते हैं, प्लांट्स कैसे खाते हैं, प्लांट्स तो लिप्स में बनता है, लोग खाना नहीं खुद ही बना लेते हैं. तो खाएंगे, खाना उन लोगों को खाने की ज़रूरत क्या है, राइट? प्लांट मेक देयर ओन फूड and they with the help of air, water and sunlight. Plants absorb water from soil through their roots. The leaves prepare food for the plants. So living things feel. Living things क्या करते हैं, फील करते हैं. जैसे क्या, कोई तुम्हें मारने से क्या करेगा, तुम लोग कुछ रिएक्ट तो करोगे यार. हम लोग रोते हैं, कोई मारने से हम लोग रोते हैं या गुस्सा होते हैं, तो उसको क्या होता है, हम लोग को फील होता है कि किसी ने हम लोग को मारा है या कुछ करा है. जैसे कि कुत्ते जा रहे हैं, हम लोग जो उसको मारने से क्या भाग जाते हैं ना, बिल्ली मारने से भाग जाते हैं, तो उन लोगों को एक फील होता है. द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑर्गन्स टू नो अबाउट द चेंजेस अराउंड देम. और हम लोग जैसे कि हम लोग ठंड के समय में ठंड लगता है, गर्मी के समय में गर्मी लगता है, जो कोई डेंजर होने से हम लोग को पता चल जाता है कुछ गलत होने वाला है, तो कैसे फील करते हैं ये सब हम अपना सेंस ऑर्गन से फील करते हैं. प्लांट्स टू कैन फील. प्लांट्स भी फील करते हैं. फ्लावर्स लाइक मॉर्निंग ग्लोरी ओपन देयर पेटल्स इन द मॉर्निंग एंड क्लोज देम इन द इवनिंग. कुछ फ्लावर्स होते हैं मॉर्निंग ग्लोरी बोल के, तो वो लोग सुबह को अपना फ्लावर्स को ऐसे मतलब शाइन करते हैं और रात को इवनिंग होने से फिर फोल्ड हो जाते हैं. तो दे कैन फील द सनलाइट पीरियड. तो वो लोग सनलाइट पड़ने से उन लोगों को फील होता है कि अभी सनलाइट पड़ा है, इसलिए वो खुल जाता है. लेकिन जब रात को सनलाइट नहीं होता है, वो लोग अब फिर से बंद हो जाता है. तो and for example touch me not plant, I said ना mimosa, if you touch that plant it shrinks. So ऐसा है, तो उन लोगों को भी फील होता है. कुछ प्लांट्स नहीं दिखाता है, कुछ प्लांट्स को सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है, तो उन लोगों को ज़्यादा दिखता है हम लोगों को. लेकिन हर प्लांट्स को फील होता है. हम लोग को दिखाई नहीं देता है, लेकिन हर प्लांट्स को फील होता है. तो द नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स ब्रेथ दोनों ही सेम है, हम दोनों ही बोलते हैं. तो ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ एयर, विदाउट एयर दे वुड डाई, राइट? तो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ब्रेथ थ्रू देयर नोसेस. फिशेस हैव गिल्स टू ब्रेथ एंड प्लांट्स ऑल्सो they breathe through their lips. The lips have very tiny pores called stomata through which they take in air. तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या एनिमल्स जो होते हैं, फिश को छोड़ के एनिमल जो होते हैं, वो लोग अपना नाक से ब्रेथ करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, मतलब फॉर टू स्टे अलाइव दे टेक ब्रेथ. एंड ह्यूमन बींग्स
एंड एनिमल्स ब्रीथ थ्रू नाउज, अपने नाक से लेते हैं। और फिश जो होते हैं, तो फिश को कैसे, अगर एयर में ऑक्सीजन होता है तो हम लोग को तो एयर से मिलता है, तो फिश कैसे ऑक्सीजन, फिश को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो कैसे यूज़ करता है वो लोग ऑक्सीजन? वो लोग ऐसे ऑक्सीजन यूज़ करते हैं कि जो पानी में जो ऑक्सीजन होता है, पानी में भी ऑक्सीजन होता है, वो डिज़ोल्व होता है, पानी में भी ऑक्सीजन होता है, और वो फिश गिल्स की मदद से वो पानी में से जो ऑक्सीजन होता है वही यूज़ करते हैं। दे यूज़ द ऑक्सीजन दे हैव इन द वाटर। एंड प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स। द लीव्स इज द टाइनी पोर्ट्स, टाइनी पोर्ट्स मतलब छोटा छोटा पोर्ट्स, मतलब छोटा छोटा, मतलब क्या बोलते हैं, होल की तरह होता है, और उन लोगों को स्टोमाटा बोलते हैं। तो स्टोमाटा की मदद से दे वो लोग सांस लेते हैं, सांस तो नहीं लेते, दे ब्रीथ, एक्चुअली दे एक्सचेंज द गैसेस, ओके, दे absorb carbon dioxide and leave oxygen with the help of stomata. And the last point is living things reproduce. All living things reproduce their own kind. So हर एक इंसान कुत्ते को जन्म नहीं देता है, कुत्ते इंसान को जन्म नहीं देता है. So this is the natural fact that if I am a human, I'll give birth to a human. So if someone is dog, if dog will give birth to dog. So plants give birth to their own breed, means own type. That means plant give birth to their plants. So plant usually grow from a seed. Seed produce the kind of plants they belong to. Some plants grow from stems, leaves and roots of the parental plant. तो ज़्यादातर प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं, सीड से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं कि अपने स्टेम से, लीव्स से और रूट से भी ग्रो करते हैं. ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू द बेबीज. बर्ड ले एग्स. बेबी एंड बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स. कुछ बर्ड जो होते हैं हैन हो या कुछ बर्ड्स, कुछ में ज़्यादातर बर्ड्स वो लोग अंडे देते हैं, मतलब दे बर्ड ले एग्स एंड फ्रॉम दैट एग्स द बेबी कम्स आउट. ओके, so animals like dog, cats, cow, etc. give birth to their own babies like human. Human give birth to their own from their body only, but like that dog, cats, cow, they give birth to their own babies. And non-living things like chair, car or computer do not grow. Ball, table, toys and other non-living things do not need food. Moreover, non-living things cannot feel breath or reproduce, and these are the differences between living things and non-living things, and we can differentiate between living things and non-living things. So let's have a look around us and let us point out which one is living things, which one is natural but non-living things, and note that and see, did you understand the chapter? Or if you have any queries, any doubt, then ask in the comment section. So bye, take care, and if you like our video, hit a subscribe button and like our video and share. Bye, stay home and stay safe.